اور آج کا ہمارا مضمون ہے آج قبولیت کا وقت ہے، آج قبولیت کا وقت ہے۔ اور میں آپ سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم خدا کے کلام کو غور سے سنتے ہیں تو پھر خدا بھی ہماری سنتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور خدا ہماری اس وقت سنے گا جب ہم خدا کے کلام کو سن کر اپنے دل میں رکھیں گے، سن کر اپنے دل میں رکھیں گے۔ خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے کہ خداوند میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ جس انسان کے دل کے اندر اس کا کلام ہے وہ گناہ سے جو ہے وہ دور رہتا ہے۔ خدا کا کلام جو ہے وہ ہمیں بدی سے بچا سکتا ہے۔ خدا کے کلام کے اندر قوت ہے، قدرت ہے، اور جب خدا کا کلام ہمارے دل کے اندر ہوگا تو خدا کا کلام جو ہے وہ ہمیں قوت دے گا اور ہم ابلیس کی ساری قدرت پر غالب آ سکتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ تو ہم خدا کے کلام مقدس کی طرف پڑھیں گے، سبھی میرے ساتھ مل کر نکالیے گا۔ دوسرا کرنتھیوں کا خط ہے، اس کا 5واں باب اور اس کی 21ویں آیت مقدسہ سے ہم خدا کے کلام میں سے تلاوت کریں گے۔ تو بلند آواز کے ساتھ پڑھنے میں رہنمائی کیجیے گا۔ 5ویں باب کی 21ویں آیت اور 6 باب کی پہلی اور دوسری آیت۔ جو گناہ سے واقف نہ تھا اسی کو اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا تاکہ ہم اس میں ہو کر خدا کی راست بازی ہو جائیں۔ اور ہم جو اس کے ساتھ کام میں شریک ہیں یہ بھی التماس کرتے ہیں کہ خدا کا فضل جو تم پر ہوا بے فائدہ نہ رہنے دو، کیونکہ وہ فرماتا ہے کہ میں نے قبولیت کے وقت تیری سن لی اور نجات کے دن تیری مدد کی۔ دیکھو اب قبولیت کا وقت ہے، دیکھو یہ نجات کا دن ہے۔ آمین۔ خداوند کا زندہ کلام پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے خداوند ہم سب کو برکت دے، کہیے آمین۔ یہاں پر خدا کے کلام مقدس میں جو حوالہ ہم نے خدا کے کلام میں سے تلاوت کیا، خدا کا بندہ مقدس پولس رسول کرنتھس کی کلیسیا کے نام اس خط کو لکھتا ہے، اور وہ یہاں پر کرنتھس کی کلیسیا کو اس وقت یہ بات جو ہے وہ یاد دلا رہا کہ وہ جو گناہ سے واقف نہ تھا، وہ یعنی کہ یسوع مسیح جو گناہ سے واقف نہ تھا اسی کو اس نے یعنی کہ باپ نے اسے ہمارے لیے گناہ ٹھہرایا، یعنی کہ گنہگار۔ اور میرے عزیزو پھر خدا کے کلام میں لکھتا ہے کہ تاکہ ہم اس میں ہو کر یعنی یسوع میں ہو کر خدا کی راست بازی ہو جائیں۔ پھر وہ کہتا ہے کہ اور ہم جو اس کے ساتھ کام میں شریک ہیں یہ بھی التماس کرتے ہیں کہ خدا کا فضل جو تم پر ہوا ہے، خدا کا فضل جو تم پر ہوا ہے بے فائدہ نہ رہنے دو، بے فائدہ نہ رہنے دو۔ پھر کہتا ہے کہ کیونکہ وہ فرماتا ہے کہ میں نے قبولیت کے وقت تیری سن لی اور نجات کے دن تیری مدد کی۔ پھر کہتا ہے کہ دیکھو اب قبولیت کا وقت ہے، دیکھو اب قبولیت کا کیا ہے؟ وقت ہے۔ دیکھو یہ نجات کا دن ہے، دیکھو یہ نجات کا دن ہے۔ وہ یہاں پر کرنتھس کی کلیسیا کو جو ہے وہ یسوع کے بہائے ہوئے لہو کے بارے میں وہ یاد دلا رہا تھا کہ کس طرح یسوع کو گنہگار ٹھہرایا گیا ہمارے سبب سے، کس طرح اسے وہ جس کی ذات کے اندر گناہ نہیں تھا اسے گنہگار ٹھہرایا جاتا ہے۔ وہ گناہ سے واقف نہیں تھا، وہ صدر عدالت کے اندر کھڑا ہو کر بڑی دلیری کے ساتھ جو ہے وہ کہہ رہا تھا کہ کون ہے جو میری ذات کے اندر گناہ کو ثابت کر سکتا ہے۔ لیکن میرے عزیزو باپ کو یہ پسند آیا کہ ہماری بدکرداری جو ہے وہ اس پر لاد دے، ہمارے گناہوں کو اس پر لاد دے۔ خدا کا بندہ یوحنا کہتا ہے کہ دیکھو خدا کا برہ جو جہان کے گناہ اٹھا لیا جاتا، ہمارے گناہ اس پر لاد دیے گئے۔ خدا کا بندہ یہ سایہ 750 سال پہلے جو ہے وہ اس بات کی پیشن گوئی کر رہا تھا، خدا نے یہ بید اس پر کھول دیا۔ تو وہ کہتا ہے کہ ہمارے گناہوں کے سبب سے وہ کچلا گیا، اسے قائل کیا گیا، ہماری خاطر اس پر سیاست ہوئی، اور میرے عزیزو وہ جو ہے وہ سب کچھ سہتا رہا، کیونکہ وہ اس لیے اس دنیا کے اندر آیا تھا تاکہ ہمیشہ کی زندگی کا دروازہ
जो गुनाह के सबब से बंद हो चुका था बनी नौ इंसान के लिए, तो मेरे दिलों उस गुनाह के सबब से जो जिंदगी का दरवाजा बंद था, जरूर था कि कोई ऐसा आता जो गुनाह से वाकिफ नहीं था, जिसकी जात के अंदर गुनाह ना हो, वो भी बिन बाप के पैदा हो। और यीशु मसीह बगैर बाप के इस दुनिया के अंदर आया और उसने हमेशा की जिंदगी के उस दरवाजे को दोबारा से हमारे लिए क्या कर दिया? खोल दिया। वो दरवाजा ऐसे ही नहीं खुला, बल्कि उसने हमारे गुनाहों को अपने ऊपर उठा लिया। वो हमारे लिए गुनहगार ठहराया गया, उस पर लान तान की गई, लेकिन वो सब कुछ बर्दाश्त करते हुए जो है वो सलीब पर जो है वो अपनी जान को देने के लिए बिल्कुल तैयार था। और मेरे जिंदो इसलिए वो गुनहगार ठहराया गया ताकि हम उसमें होकर खुदा की रास्तबाजी हो जाए, खुदा हम रास्तबाज ठहराए जाए। उसके गुनाहगार ठहराए जाने के सबब से हम रास्तबाज ठहराए जाते हैं। फिर खुदा का बंदा कहता है कि हम जो उसके साथ काम में शरीक हैं ये इल्तमास करते हैं। ये क्या करते हैं? इल्तमास करते हैं। वो यहाँ पर जो है वो इल्तमास कर रहा है, उनसे मिन्नत कर रहा है कि हम जो उसके साथ काम में शरीक हैं, यानी कि हम जो खुदा के कलाम की मुरादी कर रहे हैं, यीशु मसीह की हम जो मुरादी कर रहे हैं, उसके हम साथ इस काम में शरीक हैं, ताकि तो वो फजल जो तुम पर हुआ है बेफायदा ना रहने दो। और उसका फजल बेफायदा उस वक्त हमारे लिए है जब हम खुदा के कलाम को सुनकर रद्द कर दें, जब हम खुदा के कलाम को सुनकर उसे अनसुना कर दें, जब हम खुदा की हजूरी के अंदर आकर फिर भी जो है वो हम खाली चले जाए, फिर उसका फजल जो है वो हमारे लिए बेफायदा है। उसके फजल से जो यीशु मसीह का बहाया हुआ लहू है वो हमारे लिए फायदामंद उतनी देर तक नहीं है जब तक हम खुदा के कलाम को कबूल नहीं करते, खुदा के कलाम को अपने दिल के अंदर नहीं रखते। तो मेरे जीतो इसलिए खुदा का बंदा पौलुस उस वक्त कुरिन्थुस की कलीसिया से इल्तमास कर रहा था, लेकिन आज ये कलाम हम सब के लिए है। आज खुदा का कलाम जो है वो हमसे, खुदा का कलाम फरमाता है कि हम तुमसे इल्तमास करते हैं, जितने भी खादम हैं वो कलीसिया से उनकी कोशिश यही होती है कि हमारी बहनें, हमारे भाई, हमारे बेटे, हमारे बुजुर्ग जो हैं वो गुनाह से बच जाएं। यीशु मसीह का बहाया हुआ लहू जो है उस फजल से हम फायदा उठा सकें। उस फजल के बारे में जो है वो हर एक खादम जो है वो इसको प्रीच कर रहा है कि यीशु हमारे लिए इस दुनिया के अंदर आया, यीशु ने हमारे लिए अपनी जान का फिदिया दिया। इसलिए मेरे दिलों फिर खुदा का बंदा कहता है कि क्योंकि वो फरमाता है कि मैंने कबूलियत के वक्त तेरी सुन ली, मैंने कबूलियत के वक्त तेरी क्या कर ली? सुन ली। और निजात के दिन तेरी मदद की, निजात के दिन तेरी क्या की? मदद की। देखो अब कबूलियत का वक्त है, देखो अब कौन सा वक्त है? कबूलियत का वक्त है। यीशु मसीह के आने से पहले जो है वो मेरे दिलों हम हमेशा की जिंदगी के अंदर कोई भी इंसान दाखिल नहीं हो सकता था। यीशु मसीह के इस दुनिया में कफारा देने से पहले जो है वो इंसान जो है वो हलाकत की मौत मारे जा रहे थे। उन्हें हमेशा की जिंदगी की पहचान नहीं थी। जितने भी नबी आए, पैगंबर आए, उन्होंने जो है वो यीशु मसीह के बारे में पेशन गोया करते रहे। और खुदा का बंदा सबसे ज्यादा पेशन गोया जिसने की वो खुदा का बंदा यशायाह, वो कहता है कि हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ। तवल्लद का मतलब है चुना जाना, हमारे लिए एक को चुना गया है। जब वो इस दुनिया के अंदर आया जिसकी जात के अंदर गुनाह नहीं था, वो गुनाह से वाकिफ नहीं था, मेरे तो उसे गुनाहगार ठहराया जाता है ताकि हम उसके वसीला से रास्तबाज बन जाएं। और फिर जब कोई इंसान यीशु मसीह पर ईमान ले आता है तो उसी दिन से उसकी निजात शुरू हो जाती है। हालेलुया। जब कोई बेटा, कोई बहन, कोई भाई जब यीशु को कबूल कर लेता है तो वही दिन उसके लिए निजात का दिन बन जाता है। और मेरे जीजों, जब हम खुदा के कलाम मुकद्दस में ज़कई की जिंदगी पर गौर करते हैं, हम सब ने बहुत बार जो है वो उसके बारे में खुदा के कलाम को सुना है।
ज़कई जो महसूल लेने वालों का सरदार था, उसे पता चलता है कि यीशु जो है वो गुनाहों को माफ करता है। यीशु वो है जो 38 बरस से जो गुनहगार शख्स बोझ के किनारे पर इस बात की उम्मीद में था कि जब पानी लाया जाए तो मैं उसमें उतर कर शिफा पाऊंगा। 38 वर्ष गुजर गए थे। अगर वो उसके गुनाह मुआफ कर सकता है, उससे कह सकता है कि जा तेरे गुनाह माफ हुए, उठ और अपनी चारपाई उठा और चल फिर, तो वो मेरे भी गुनाह माफ कर सकता है। जब उसने ये बात सुनी, यीशु के बारे में बहुत चर्चा था, तो उसने अपने दिल में सोचा कि मैं भी यीशु को देखूं, मैं भी यीशु को क्या करूं, लेकिन वो सिर्फ यीशु को देखना चाहता था। वो यीशु को देखने की उम्मीद पर जो है वो जब यीशु शहर में दाखिल हुआ तो वो यीशु को देखने के लिए जो है वो गया। भीड़ बहुत थी, वो यीशु को देखने की कोशिश करता रहा लेकिन वो नहीं देख पाया। और जिस रास्ते को यीशु जा रहे थे मेरे दिलों, उसने सबसे आगे वो भाग गया और जो है वो एक गूलर के पेड़ पर चढ़कर जो है वो यीशु का इंतजार करने लगा कि यीशु जब यहाँ से गुजरेगा तो मैं ऊपर से ही उसे क्या कर लूंगा, देख लूंगा। और यीशु जब उस रास्ता से गुजर रहे थे तो यीशु ने ज़कई को देखा और ज़कई से कहा कि ऐ ज़कई नीचे उतर आया। ज़कई क्या कर नीचे उतर। यीशु को ये पता चल गया था कि ये मुझे देखने की उम्मीद रखता है। और मेरे जी को जब यीशु ने उसे नीचे बुलाया तो जब वो नीचे आकर यीशु के पास खड़ा होता तो यीशु कहता कि आज मुझे तेरे ही घर रहना है, आज मुझे तेरे ही घर रहना है। सिर्फ वो आया था यीशु को देखने के लिए, लेकिन यीशु उसके साथ उसके घर चला गया। आज हम खुदा की हजूरी के अंदर आते हैं, हम अपनी दुआएं, अपनी मुसीबतें, फरियादें लेकर हम खुदा की हजूरी के अंदर आते हैं। हम अपनी बीमारी लेकर खुदा की हजूरी के अंदर आते हैं कि हमें शिफा मिले, हमारी मुसीबत से हमें रिहाई मिले। लेकिन कभी भी किसी ने ये कोशिश नहीं की कि आज मैंने यीशु को साथ लेकर अपने घर जाना है। कभी भी हम इस उम्मीद पर नहीं आए। और यीशु दिलों और गुर्दों को जांचने वाला खुदावंद है। यीशु ने ज़कई की जिंदगी पर गौर की कि ये बदलना चाहता है, ये निजात पाना चाहता है, ये अपने गुनाह मुआफ करवाना चाहता है। जब यीशु उसके घर पहुंचा तो मेरे दिलों खुशी के साथ जो है उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो इतना खुश था कि वो कहता कि मैं खुदावंद, मैं अपना सारा माल गरीबों में बांटता हूं, अगर किसी का नाहक लिया है तो उसके 4 गुना वापिस करता हूं। तो यीशु ने जब उसकी ये बातें सुनी तो यीशु ने कहा कि आज इस घर के अंदर निजात आई है। और मेरे दिलों जब उसने यीशु को कबूल कर लिया, जिस दिन यीशु को उसने कबूल कर लिया तो वही दिन उसकी निजात का दिन बन गया। हालेलुया। आज अगर हम पूरे दिल से यीशु को कबूल करेंगे तो यही दिन हमारे लिए निजात का दिन बन सकता है। आज जब हम इस बात की उम्मीद रखेंगे कि मैंने यीशु को साथ लेकर जाना है तो यीशु जरूर हमारे साथ जाएगा, क्योंकि वो अपने मांगने वाले को कभी भी शर्मिंदा नहीं होने देता। और ज़कई की जिंदगी पर जब हमने गौर किया है तो ज़कई ने यीशु को कबूल कर लिया। ये बात इस बात से जाहिर हो रही थी कि वो जो महसूल लेने वालों का सरदार था मेरे दिलों, वो अपना सारा माल गरीबों में बांट देता। उसे पता था कि जिसके पास से ये सब कुछ मिलता है मैंने उसे ही हासिल कर लिया है। और वही दिन जो है वो उसकी निजात का दिन बन गया, वही दिन जो है वो उसकी कबूलियत का दिन बन गया। आज हमने अपनी जिंदगी पर जो है वो गौर करना है। और मेरे जीजो, जब हम ईमान रखते हैं, उसके हुजूर आते हैं ईमान के साथ, तो वो जरूर हमारी दुआ का जवाब हमें देता है। हमें चाहिए कि हम पूरे तौर से जो फजल हम पर हुआ है, जिसके बारे में जो है वो खुदा का कलाम फरमाता है कि मेरा फजल तेरे लिए काफी है, उसका फजल ही हमारे लिए काफी है। वो कहता है कि आसमान की बादशाही की तलाश कर तो ये दुनिया की चीजें मैं तुझे इनाम में दे दूं। अगर इनाम में पाना चाहते हैं तो फिर हमें खुदा की बादशाही की तलाश करने की जरूरत है। जब उसकी बादशाही की तलाश करेंगे, जब हम खुदा के कलाम को सुनकर अपने दिल के अंदर रखेंगे, जब इस बात पर को एक्सेप्ट कर लेंगे कि यीशु मेरे लिए इस दुनिया के अंदर आया, यीशु ने मेरे लिए अपनी जान का फिदिया दिया, वो मेरे लिए मारा गया, कूटा गया, सताया गया,
उसने कोड़ों की मार खाई, कांटों का ताज उसे पहनाया गया, उसके हाथों और पाँव में कील ठोके गए, उसकी पसली में नेजा मारा गया, उसका सारा लहू सलीब पर बह गया हमारे लिए, लेकिन उसने अपना मुंह नहीं खोला। जब यीशु मसीह सलीब पर थे तो दो डाकू यीशु के साथ जो है वो सलीब दिए गए, एक बाईं तरफ और एक दाईं तरफ, और बाईं तरफ वाला कहने लगा क्या यीशु अगर तू खुदा का बेटा होता, अगर तू मसीह होता तो खुद भी बचता और हमें भी क्या करता, बचाता। वो यीशु मसीह को जो है वो ताने मार रहा था, वो उस पर लान तान कर रहा था, लेकिन दूसरा डाकू जो है वो उस डाकू से मुखातिब होता और कहता है कि क्या तू खुदा से भी नहीं डरता, हम तो अपने किए की सजा पा रहे हैं, हम तो अपने किए की सजा पा रहे हैं, लेकिन इसने तो कोई भी गुनाह नहीं किया। और यीशु से वो इल्तिमास करता, कहता है कि ऐ खुदावंद जब तू अपनी बादशाही में जाए तो मुझे याद करना। तो यीशु ने कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। और मेरे जो यीशु ने उसके लिए निजात का दरवाजा क्या कर दिया, खोल दिया। उसकी इल्तिमास, उसकी दुआ जो है वो सुन ली गई। वही दिन उसकी कबूलियत का दिन बन गया, वही दिन उसकी निजात का दिन बन गया जब हम पूरे दिल के साथ, पूरे तौर से जब हम यीशु को कबूल करेंगे, जब हम यीशु की हजूरी के अंदर आएंगे, तो फिर आज हमारे लिए कबूलियत का वक्त हो सकता है। खुदा का कलाम फरमाता है कि देखो अब कबूलियत का वक्त है। वही कबूलियत का वक्त है जब हम इकट्ठे हों खुदा की हजूरी के अंदर और वो यहाँ पर मौजूद हो। जब वो मौजूद है तो जरूर वो हमारी दुआओं को कबूल करेगा। और मेरे जिदो जब हम जिस्मानी तौर पर अगर हम मुसीबत के अंदर हैं, अगर हम परेशानी के अंदर हैं, किसी के पास जाएं, अपने अजीज के पास, किसी रिश्तेदार के पास, तो क्या हम उसे अपनी मुसीबत बताकर वापस आ जाएंगे, या कोशिश हमारी उम्मीद ये होगी कि ये मेरी मुसीबत से मुझे जो है वो मेरी मदद करेगा मुसीबत में, या मुझे ये कोई हल बताएगा। हम जवाब जरूर लेकर आते हैं। हमने कभी भी ऐसा नहीं किया कि हम जो है वो किसी के पास अपने जो है वो मुश्किल लेकर गए हों तो हमें जो है वो पॉजिटिव हमारी उम्मीद ये होती है कि ज़रूर मेरी ये बहन, मेरा ये अजीज़, मेरा ये भाई जो है वो ज़रूर मुसीबत में मेरे साथ खड़ा होगा। लेकिन हम जब यीशु की हजूरी के अंदर आते हैं, हम मुसीबतें, परेशानियां, अपनी ज़रूरतें खुदा को बताकर चले जाते हैं, लेकिन हमने कभी भी ये इंतज़ार नहीं किया कि खुदा मेरी दुआ का जवाब दे। हमने कभी भी उसके साथ बात करने की कोशिश नहीं की। हमने कभी भी जो है वो इस बात पर उम्मीद नहीं रखी कि यीशु अभी जो है वो मेरी दुआ का जवाब देगा। लेकिन खुदा का कलाम फरमाता है कि वो फरमाता है कि देखो अब कबूलियत का वक्त है। आज काश के हम इस ईमान के साथ उसकी हजूरी के अंदर झुक जाएं। काश के आज का दिन हमारे लिए निजात का दिन बन जाए, जिस तरह उस डाकू के लिए निजात का दिन बन गया, जिस तरह ज़कई के लिए निजात का दिन वही दिन बन गया जिस दिन उन्होंने यीशु को कबूल कर लिया। तो मेरे दिलों आज हमारे लिए भी ऐसा हो सकता है, लेकिन हमें पूरे दिल के साथ उसके सामने घुटनों के बल होकर अपने लबों को खोलना है, क्योंकि वो कहता है कि तो अपने मुंह को खूब खोल तो मैं तुझे भर दूंगा। वो हमें भरने की कुदरत रखता है, लेकिन जब वो भरेगा उस वक्त जब हम अपने आप को खाली करेंगे दुनिया की फिक्रों से, सोचों से, ख्यालों से, तो फिर वो हमें भरेगा। अगर हम इन बातों से भरे रहे, दुनिया की ख्वाहिशों से, दुनिया की चीजों से, तो अपनी सोचें दुनियादारी की तरफ रखेंगे तो हम भरे रहेंगे, तो कभी भी वो हमें भरेगा नहीं, क्योंकि भरा हुआ जो है वो पहले ही भरा है। तो अगर उसमें और डालेंगे तो वो जाया होगा। जरूर है कि हम घटे और वो बढ़े, हम खाली हों और वो हमें भर दे। सो आए अपने सरों को झुकाइए।